یہ ایک گولڈن کوائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس پر ایک شخص کی تصویر بنی ہے جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے. ہاں بیٹ دکھ رہا ہے وہ بیٹ ہے یا تلوار اس زمانے کی، بہرحال جو بھی ہے، جس طرح سے جو بھی اس کے ہاتھ میں ایک کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس پر جو ہے یہ سیریاک میں لکھا ہے. آج ہم اس کو عربی کہتے ہیں، اصل میں یہ سیریاک کے حروف ہیں. یہ لسان تو عربی ہے لیکن اس کے حروف، اس کے جو حروف تہجی ہیں وہ سیریاک کے ہیں. اس میں کیا لکھا ہے دیکھیے، بسم اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ محمد الرسول اللہ. آپ کو پتا ہے یہ کوائن 7th سینچری اے ڈی کا ہے، اور یہ نہیں ایک نہیں، اس طرح کے گولڈن یا پھر جو ہے اور سلور اور اس طرح کے بے شمار کوائنز آپ کو یعنی 7th سینچری کے مل جاتے ہیں، آج بھی میوزیمز میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اسکالر جو ہے ان کو لے کر ظاہر بات ہے اس طرح کے کوائنز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ کس زمانے میں جو ہے، اور پھر اس پہ باقاعدہ ڈیٹ بھی ہوتی ہے. میں یہاں مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر جو عبارت ہے وہ ایک عجیب سی ہے، حالانکہ یہ قرآن کی عبارت نہیں ہے، قرآن سے پہلے کی عبارت ہے، قرآن کے لکھے جانے سے پہلے کی عبارت ہے، جس پہ لکھا ہے بسم اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ. حالانکہ یہ قرآنی کلمات نہیں ہیں، محمد رسول اللہ یہ ایک سلسلے کے طور پر. عجیب بات یہ ہے کہ اس کوائن میں محمد الرسول اللہ لکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک کوائن جو کہ 7th سینچری اے ڈی کا ہے، جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہے اور اس پہ ایک تصویر بنی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس پہ باقاعدہ ایک تصویر بنی ہے. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے ایک عام آدمی سوال کرے گا کہ بھئی یہ تصویر کیا محمد رسول اللہ کی؟ ایک سوال ہے، جی ایک سوال ہے. ہاں اچھا ان کی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 7th سینچری اے ڈی میں یعنی یہ محمد رسول اللہ کا معاملہ اتنا سینسیٹیو نہیں تھا کہ اس زمانے میں ایک کوائن پر یعنی محمد رسول اللہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس پر باقاعدہ ایک تصویر بھی بنائی جاتی ہے. اور یہ یعنی 21ویں صدی کے آتے آتے محمد رسول اللہ اتنا سینسیٹیو ہو گیا یہ ایشو کہ آج کوئی کارٹون بھی بنا لے، اس پر نام بھی نہ لکھے، اس کے باوجود پوری دنیا میں جو ہے آگ لگ جائے گی. بالکل یہی میں بھی آپ سے سوال کرنے والا تھا قرآن والا جی، کہ اگر ہم حدیثوں کی روشنی سے دیکھیں تو وہاں تو رسول اللہ امیج بنانے کو، کارٹون یا یہ جو اسکیچ بنانا ہے، اس سے وہ صاف منع کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ اگر اس طریقے سے کرو گے تو قیامت کے دن اللہ آپ سے پھر مطالبہ کرے گا کہ اس میں جان بھی ڈالو. تو 7th سینچری اے ڈی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوائن ہے، تو ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ تو یعنی بلاسفیمی کے طور پہ ہو جائے گا؟ بھئی 7th سینچری میں تو انہوں تھے ہی نہیں نا. اگر یہ سارا معاملہ بات کا ہے، یعنی جو بھی روایتیں آپ پیش کر رہے ہیں یہ سب بعد میں عباسیوں کے دوارا گھڑی گئی نا بھائی. 7th سینچری میں تو یہ ساری باتیں تھی نہیں، یہ باتیں نہیں تھی، تو اتنی سینسیٹیوٹی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہاں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی تصویر، اب آپ دیکھیں ایک بات یہ بھی تھی کہ 7th سینچری میں جن لوگوں کو عرب کہا گیا وہ کتنے بھدے، یہ دیکھیں ان کو لکھنے بھی نہیں آتا. اس کے خط کی جو اسٹائل دیکھیں، وہ تصویر کی شکل دیکھیں. جبکہ اب ہمارے بھارت میں آپ 7th سینچری کا جو ہے وہ زمانہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر راکس پر یا پھر پتھر کو تراش کر کیسی چیزیں، آج بھی ہم دنگ رہ جاتے ہیں یار. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ عرب کا وہ زمانہ، وہ علاقہ کتنا پچھڑا ہوا تھا، کتنا جو ہے پریمیٹیو تھا، کتنا مبتدی تھا، جبکہ اس زمانے سے پہلے ہی ہم کتنے ایڈوانس تھے. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کتنا ایڈوانس تھا اور عرب کا وہ علاقہ کتنا پریمیٹیو تھا، کتنا مبتدی تھا، ہے نا، کتنا بگنر. اس کو بھی جو ہے لکھت بھی جو ہے ڈھنگ سے لکھنے نہیں آتا تھا. اچھا اب آپ یہ ذرا تھوڑا غور سے دیکھیے کہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ کا واو الگ ہے، اس کے بعد اس شخص کے 2 پیر ہیں اور ہے دال ہے،
इधर अलग हो गया यार। आप जरा थोड़ा सा हाँ। और करें तो आपको अंदाजा होगा कि वहदहू, हालांकि एक ही कलिमा है, एक वर्ड है, वहदहू एक वर्ड है, लेकिन इस शख्स ने अपने पैरों के जरिए से वहदहू में शिर्क कर डाला। हाँ, जूता लेके आ गया उधर। एक ने दो जूते यार। हाँ, वो भी एक मोटा जूता है, एक पतला जूता है। ये शख्स को लगता है इसका डिसेबिलिटी भी थी, लगता है एक पैर उसका नॉर्मल था, एक पैर उसका एक जरा पतला मोटा था। है, एक पतला है जी। हाँ, अब आप अंदाजा लगाएं कि जो है, यानी वो उस जमाने के लिखने वालों को, अरे भाई इतनी भी सूझबूझ नहीं थी, इतनी पहचान भी नहीं थी कि ये एक सिंगल वर्ड को एक साथ एक जगह लिखें, और फिर हाँ। मोहम्मद तकरीबन पैरों के करीब करीब लिखा जा रहा है। आप जरा सोचिए कि आज के इस दौर में जो कि इतना एडवांस, इतना मॉडर्न, इतना जो है इतना रोशन ख्याल लोग पाए जाते हैं, मुसलमान क्या इस तरह के कॉइन्स को आज के जमाने में यानी फिर से इस तरह से जो है प्रिंट करके दुनिया के सामने पेश करने की जो है सकत रख सकते हैं? करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ MBS साहब को करना चाहिए। हाँ भाई, जाहिर बात है इस कॉइन को ना तो आपने बनाया साहिल, ना मैंने बनाया ना, लेकिन उसके बावजूद देखें कि इसमें कितना लिबरलिज्म पाया जाता है, कितनी वसात है, कितना फैलाव के जो है वहदहू में शिर्क कर दिया गया। उस पर जो है वहदहू पर यह शख्स खड़ा हो गया अपने पैरों के साथ, जूतों के साथ, और लफ्ज मोहम्मद उसके पैरों के करीब है। आप जरा सोचिए। अच्छा, कॉइन का ये मामला होता है, नोट के साथ तो खैर इतना मामला नहीं होता है, लेकिन कॉइन के साथ ये मामला होता है कि हमारी पतलून में अगर कॉइन वॉइन है और कभी हम अगर हगनपुर चले गए तो कभी कभी कॉइन जो है वो टॉयलेट के अंदर भी गिर जाता है, कुरान वाला जी। हाँ, अंदर ही गिर जाता है, जाहिर बात है गिर जाता है, सही बात है। गिर गया तो उसको निकालेगा कौन? जो गिर गया, कौन निकालेगा उसको? हाँ अभी इस तरह का कॉइन लेके जो है टॉयलेट में चला जाए, अंदर गिर गया है, तो अब क्या होगा? जरा सोचें ना। सोचने की बात है कि मुसलमानों को जो है उनके अंदर जो सेंसिटिविटी पाई जाती है गैर जरूरी, मैं दरअसल उसको डिसेंसिटाइज करना चाहता हूँ जी। मैं चाहता हूं कि मुसलमान इस तरह की बातों को लेकर इतने जो सेंसिटिव हो, सर को गर्म करके फिरते हैं। अरे भाई, सर को गर्म करना छोड़ो यार। यानी एक जमाना ऐसा गुजरा है जिस वक्त ये सब कुछ अल्लाह के बारे में, वहदहू के बारे में, मोहम्मद के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में ये सब कुछ होता रहा है, हो चुका है। और आज के जमाने में 21वीं सदी में जो कि आप अपने आप को इतने मॉडर्न, इतने रोशन ख्याल कहते हो, इतने कंजर्वेटिव हैं आपके ख्यालात। मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, ये बात मुसलमानों से कह रहा हूं, है ना? बिल्कुल सोचने और गौर और फिक्र करने वाली बात है, फिक्र करने की बात है। मैं अब जाहिर बात है, आप भी या हम भी, हमारी एक्टिविज्म का मकसद ये है कि जो है हम अपनी कौम को उनके अंदर उनकी आंखों को खोलना चाहते हैं, उनके कान को खोलना चाहते हैं, उनकी अकल को जगाना चाहते हैं। हमारा असल मकसद ये है ना भाई। हाँ अच्छा, कुरान वाला जी, ये मीनू जी का आंखें बड़ी ही ज्यादा तेज है। इन्होंने और एक चीज बताई कि एक पैर में हाथ कटा हुआ है। ये देखिए, लेफ्ट वाला जो हाथ है वो भी ऐसा लग रहा है कि डिसेबिलिटी, हाथ टूटा हुआ है, हाथ तोंटा हाथ है वो। तो इसका मतलब साहिल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये शख्स लंगड़ा भी है, लूला भी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? देखिए ना, मैं आप अपने साइड से वो माउस जरा वो दूसरे वाले हाथ की तरफ लेके आइए ताकि लोग देखें। हाँ देखें, ये जो पैर है, ये जो पैर है ये बड़ा है, मोटा है। ये जो पैर है ये पतला लग रहा है। समझो, माउस नहीं दिख रहा आपका? नहीं दिख रहा मेरा माउस? नहीं। अरे मैं अपने माउस से कर्सर, हाँ कर्सर वो लेके आए तो दिखना चाहिए वो फोटो के ऊपर। हाँ मैं कर्सर हाथ की तरफ है, राइट वाले हाथ नहीं दिखेगा। ये इन्होंने इस पे शेयर किया ना। अच्छा, चलो जो लोग देख रहे हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इमेज एकदम क्लियर है, लोगों को समझ में आ रहा है। मैं लेके आता हूँ वैसे। अच्छा, इसमें और एक चीज है कुरान वाला जी के अच्छा हुआ जिसने भी बनाया है उसने मुंह को बंद रखा है। अगर मुंह खुला रखता तो वो टूटे हुए 2 दांत भी नजर आते थे। हाँ, होना ऐसी चाहिए, लेकिन उस शख्स की आंखें देखें यार कैसी है। जूम करो थोड़ा, शख्स की आंखें देखें। जूम मैं करूं? देखो जूम होता है कि आपके वहां से? मैं करता हूँ, नहीं यहाँ से नहीं होगा।
एक मिनट अच्छा। पहले लिखा था। वो ऐसा पूरा जैसे कि कोई डाकू को नहीं रहता है। हाँ सही। अभी हाँ अब इसको जो है जूम मैक्सिमम जूम करो यार, इसके चेहरे को दिखाओ यार, यानी आपका हाँ ये देखो, ये है रुखे अनवर। साहिल, रुखे अनवर का हम दीदार कर रहे हैं। अच्छा इसमें कुरान वाला जी एक आंख उसकी बंद है और दूसरी आंख खुली हुई भी है, ऊपर करो थोड़ा। अच्छा यार, यानी आप क्या 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 निकाल रहे हैं यार, जो है लंगड़ा बता दिया आपने, लूला बता दिया, फिर अब उसके बाद ये क्या क्या है यार, एक आंख से जो है माजूर है, कौन है यार? ये वाली आंख खुली दिख रही है, ये बंद दिख रही है। हाँ नाक पे भी वार पड़ा हुआ है उसके। जंगे ओहद के बाद में नाक भी गई है, नकटा भी है। हाँ नकटा काना है, लंगड़ा है, लूला है यार, क्या क्या है। ऐसा लग रहा है जंगे ओहद के बाद में फोटो ली गई है ये। अच्छा ये हमारे जो मोमिन हजरात है, आप सोचिए कि ये हमने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, हम हाँ भाई, हमने हमारे नहीं बनाया कोई ना। फतवे मत लगा देना, ये जी। हमने, देखिए हाथ देखिए उसका, हाथ देखिए, ये रहा, एक हाथ मिसिंग है। ये इतना नहीं ही अब है। आप देखें, अगर कोई पतला है हाथ, शख्स मिसिंग है, नहीं है, हाथ या पतला है वो। इसी जमाने का साहिल, कि भारत का कोई भी इलाका जहां आप पहाड़ों को तराश तराश कर जो चीजें बनाई जाती थी, आज भी लोग मेरे इंसान देखकर उसको दंग रह जाते हैं। आज भी कैसी कैसी चीजें हैं। बिल्कुल। हाँ, एक पैर जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा लकड़ी के साथ जो है वो पैर अटका हुआ है। हाँ क्या यार अजीब है। कैसा कैसा नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हमारे जो एमबीएस साहब है, अच्छा अमित जो है उसको वैसे रखो, मैं वो जो है वहदहू दिखाना चाह रहा हूँ, वहदहू। हाँ। अच्छा देखिए साहिल, ये वहदहू का एक राइट साइड पे वाउ है, दिख रहा है आपको? वाउ है, हालांकि ये सिंगल वर्ड है। जी हाँ, ये वहदहू के वाउ है दाल है, ये सिंगल वर्ड है, ठीक है। ये इसको सिंगल वर्ड में होना चाहिए था, लेकिन ये लिखने वाले ने, किसी ने कॉइन को बनाया, उसने वाउ को अलग कर दिया और है दाल है को अलग कर दिया। इसका मतलब वहदहू यानी तौहीद में शिर्क करके, शिर्क का जो है तौहीद का गला घोंट दिया, उस पर अपने दोनों पैर रख डाले। यार क्या हुआ है? बिल्कुल। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुरान वाला जी। जी आगे बढ़िए। अच्छा इसके बाद वाली जो है इमेज ले आए आप। अच्छा दरअसल मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि दिस इज दी 7th century AD अरेबियन कॉइन विद ए इमेज एंड दी इंस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहां पर मैंने बी नोटेड बी अवेयर भी लिखा है। इस पर मैं दरअसल मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अच्छा यहाँ पर ये जो आ गया ना, चैट आ गया, चैट को थोड़ा सा हटाइए तो फिर मैं इसको पढ़ूंगा जी। इट शुड बी नोटेड दैट मोहम्मद रसूलुल्लाह वाज नॉट द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, but it was just a title used by the Arab Umayyad rulers of 7th century AD। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूं, यानी जैसे फिरौन नाम एक टाइटल था, वैसा कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह। दरअसल मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि ये तस्वीर मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह असल में यानी उस जमाने का ये जो टाइटल था, और फिर ये बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरह से उस जमाने का कलिमा था। जिस तरह से आज हम कलिमा तय्यबा जिसे कहते हैं ना, ये उस जमाने का कलिमा तय्यबा था। लेकिन कलिमा तय्यबा का ये मतलब नहीं है कि जो है इसका ताल्लुक किसी दीन से या फिर जो है किसी जो है मजहब से नहीं, बल्कि ये उस जमाने का स्लोगन है भी। ये उमय्यद जो रूलर्स थे 7th century के, वो अपने साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर पर टाइटल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यानी हर उमय्यद रूलर अपने वक्त का मोहम्मद होता और वो अल्लाह का रसूल होता। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूं। अब ये रिपीट करिए, क्या कहा आपने? मोहम्मद, मैं दरअसल मोहम्मद रसूलुल्लाह असल में ये उमवियों का उस जमाने के 7th century AD के उमवियों का, उमय्यड्स का जो है ये उनका जो है टाइटल था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह असल में किसी शख्स का
पर्सनल जो है ना, मतलब जो है कोई स्पेसिफिक जो है कोई किसी पर्सन का नाम नहीं है। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ, ये अच्छा, टाइटल है, लक़ब है। नहीं दो दो टाइटल एक साथ कैसे आएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह भी तो एक समझिए टाइटल ही है ना। नहीं वैसा नहीं है, वही कहना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, दरअसल मोहम्मद नाम नहीं है, तो हर वो शख्स जो मोहम्मद है वो रसूलुल्लाह है, और जो रसूलुल्लाह है वही मोहम्मद है। ये उस जमाने का जो है स्टाइल था। और ये सारी चीजें इस्लाम से पहले की हो रही हैं, ये इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूँ, उमवियों के जमाने में इस्लाम नहीं था भाई, इस्लाम तो अब्बासियों के जमाने में आया। मैं बात कर रहा हूँ 7th सेंचुरी AD की। समझ आई आपको बात? जी जी, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्क्रीन लाऊं? हाँ, नेक्स्ट लेके आइए। अच्छा, अब आप देखें साहिल, जिस चीज को हम हदीस कहते हैं, तो हदीस होती क्या है? जी, मैंने हदीस की जिस्मानी तारीफ जो है कर दी, फिजिकल डिफिनेशन ऑफ हदीस। हदीस क्या होती है? अगर मिसाल के तौर पर कोई पूछे कि हदीस क्या है, तो अब यूं तो हम कहते हैं कि हदीस जो है दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल या फिर तकरीर, उसको हदीस कहते हैं। मैंने फिजिकली उसको जो है डिफाइन किया है। हदीस क्या है? यानी आने का नाम है। उससे उस यानी मतलब उसने उससे सुना, उसने सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसके बाद आप तक जो है ये बुखारी तक पहुंच गई बात। बुखारी से पहले के लोग कैसे थे भाई? मजहूल लोग हैं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। उनको अगर आप इमेजिन करें, उनके बारे में गौर करें, तो मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूं कि ज़ख़ीरे हदीस हम तक जिस तरह और जिन लोगों के जरिए पहुंचा, द कलेक्शन ऑफ हदीस रीच्ड अस इन द वे एंड द थ्रू द पीपल। अच्छा, ये क्या है? आप देखें, अन साद, अन हुज़ैफा, अन मास, अन हंज़ला, अन फलान, अन फलान, अन फलान, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ये है असल बात। अब ये बीच के जो आने चले आ रहे हैं वो बिल्कुल मजहूल लोग हैं। हमारे सामने जो कुछ किताब है वो बुखारी है या मुस्लिम है या तिरमिजी है, निसाई है। अब भाई ये बुखारी, तिरमिजी, मुस्लिम ये क्या है? 250-300 साल के बाद वजूद में आए ना भाई। क्या बुखारी ने या मुस्लिम ने रसूलुल्लाह को देखा है, उनसे मिलकर कोई बात पूछी है? नहीं। अच्छा, अब ये बुखारी और मुस्लिम कहां से ले रहे हैं? एक जो है मिसाल के तौर पर साद से ले रहे हैं। साद कौन है भाई? ऐसे ही आदमी है, कोई बकरी चराने वाला, कोई गाय बकरी, मतलब कोई इस तरह से, और कोई कुछ सामान ढोने वाला, एक अन साद, साद ऐसा है। अब साद ने जो है हुज़ैफा से सुना कि भी हुज़ैफा ने साद को ऐसा बताया। हुज़ैफा कौन है? वो भी मजहूल आदमी है। अच्छा, हुज़ैफा ने मुआज़ से सुना। कुरान वाले जी मजहूल आप कैसे कह सकते हैं, जबकि जो मुहद्दिस है उन्होंने बाकायदा उनकी जिंदगी लिखी हुई है कि कभी पैदा हुआ, किससे हदीस सुनी, किससे सीखा, उस्ताद का नाम, तो मजहूल कैसे कह सकते हैं आप? अच्छा, अब आप जो है यानी मतलब जिस किसी ने, यानी इमाम बुखारी ने, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने जो है साद के बारे में या हुज़ैफा के बारे में उनकी पूरी जिंदगी लिखी। मैं पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज करता हूं, आज जिस किताब को आप सहीह अल बुखारी कहते हैं वो किस जमाने का लिखा हुआ है मुझे बताएं। मैं चैलेंज करता हूं कि ये किताब जो कि दुनिया के जिस म्यूजियम में भी सही बुखारी रखी है, उसकी कार्बन डेटिंग जब की गई तो ये यानी इमाम बुखारी के भी तकरीबन 500-550 साल के बाद का जो है वो नुस्खा है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि जो है यानी बुखारी ने ऐसा कहा? अरे भाई, बुखारी का ही आपके पास कोई पता नहीं है, तो बुखारी ने ऐसा कहा, उसका क्या सबूत है आपके पास? हाँ, ये है? अगर क्रिटिकली देखे तो हाँ, ये तो पूरा झोल। मैं तो बात क्रिटिकली कह रहा हूं ना भाई। देखें, हम जब बात करते हैं, हम जब किसी चीज को जो है जांच से पड़तालते हैं तो क्रिटिकली देखेंगे ना। हम मानने वाले तो है नहीं है, हमारा ताल्लुक जानने से है। तो हम ये कहेंगे कि जब इमाम बुखारी ने ऐसा कहा तो खुद इमाम बुखारी की जो किताब है उसका अपना जो वजूद है आज दुनिया के जिस कोने में भी,
کیا اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے بعد یہ ثابت ہو سکا کہ جو ہے یہ واقعی انہی کے زمانے سے ہے؟ نہیں، یہ ان کے زمانے کے تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کے بعد یعنی 5 ساڑھے 5 صدیوں کے بعد کا جو ہے نسخہ ہے. تو امام بخاری کے زمانے کا بھی آپ کے پاس اوریجنل نہیں ہے. ہاں کافی لمبا وقفہ ہے. ہاں لمبا. اس کا مطلب جس کسی نے جو ہے وہ نسخہ لکھا اور آج ہمیں بتایا گیا کہ یہ صحیح بخاری ہے، تو اس کا مطلب اصل میں صحیح بخاری کیا تھی اس کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے امام بخاری نے سعد یا حذیفہ یا معاذ یا پھر جو ہے حنظلہ کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہے نا، کیونکہ ہم تو کریٹیکلی دیکھیں گے نا بھائی. ہاں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں گڑی گئی ہے. ظاہر بات ہے، میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ دیکھیں اسلام جسے آج ہم جو ہے جس شکل میں پاتے ہیں یہ دراصل ایوالو ہوا ہے، اس کی ایوولوشن ہوتی رہی ہے کئی صدیوں تک. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اب دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے یہ اسلام ایک زمانے میں پورا ایسا تھا. نہیں، اسلام ایوالو ہوا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چیزیں اضافہ ہوتی گئی ہیں. اب آج ظاہر بات ہے آج کے زمانے میں ایک پیکیج کی شکل میں اسلام پیش کیا جاتا ہے، لیکن کسی زمانے میں ایسا پیکیج نہیں تھا بھائی. یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء جو ہے ہوتا رہا، اس کا ارتقائی مراحل سے گزر کر آج شکل کو پہنچا ہے. میں دراصل یہ کہنا یہ آج بھی تو ایوالو ہوتے ہی جا رہے ہیں نا. ان میں سے ہاں آج بھی ہو رہا ہے، بالکل ظاہر کی بات. وہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث تک ہم نہیں مانیں گے، یہ ضعیف ہے، اس میں یہ پرابلم ہے. یہ بھی ایوولوشن ہے، ابھی وہ قرآن پہ آ گئے ہیں جی. نہیں اب یہ نہیں، آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں ساحل کہ ایوولوشن تو ہوتا رہا لیکن اب یہ ڈیوولوشن ہے. یعنی اس کا ایک یہ جو ہے یہ چڑھاؤ پر چڑھ کر اب اتار کی طرف ہے. یہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، جتنا چڑھنا تھا چڑھ گیا، اب نیچے کی طرف اتر رہا ہے. ہاں یہ ہے سوالات اٹھ رہے ہیں نا کافی، اور اب تک سوالات نہیں تھے، اسے ایوالو ہوتا رہا، لیکن اب سوالات اٹھ رہے ہیں تو ان کو نیچے آنا ہے کیونکہ سوالوں کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء یعنی ہم جیسے لوگوں کے سوالات سے منہ چراتے ہیں، وہ سامنا کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ سامنا کریں گے تو ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہمیں ریکگنیشن مل جائے گی، ہماری پہچان ہو جائے گی، لوگوں میں جو ہے لوگ ہمیں جو ہے ہمیں سننے لگیں گے، ارے بھائی یہ کون شخص ہے. تو اس طرح سے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کبھی بھی مطلب ہمارے سوالوں کا جواب دیں. جی آگے چلیں. جی نیکسٹ سلائیڈ لاؤں. جی اچھا، یہاں دیکھیں یہ دراصل میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں 4 پوائنٹس کو میں دوبارہ اس کا جو ہے ذکر کروں گا، اس کو ایک ایک کی جو ہے وضاحت کے ساتھ. فالس اینڈ بیس لیس claims have been made in front of us about Makkah, Muhammad, Islam and Quran. Now it is main responsibility of Islamic scholars to come forward and present the real facts to the world. اب دیکھیں یہ جو ہے 4 پوائنٹس کیا ہے، اب آپ ایک ایک کر کے جو ہے 7 8 9 10 بتاتے جائیں آپ، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد والا 7 پہ آ جائیں. یہ والا نا، ہاں یہ اس پہ کیا لکھا ہے دیکھیں. There is no trace of the present city of Mecca anywhere in Arabia of the 7th century AD. جی یہ جتنا کچھ میں نے تحقیق کیا ہے یہ میں نے یہ پایا ہے. اب اگر کوئی میری بات کو غلط ثابت کرنا چاہے تو ٹھیک ہے بھائی، مطلب مکہ کا کوئی ثبوت آپ 7th سینچری میں فراہم کر دیں تو میں اپنی بات سے جو ہے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا کہنا ہے، سمپل سی بات ہے. اچھا اس کے بعد آپ ابھی جو ہے 7th ہو گیا، تو یہ دیکھیں ان دی لائٹ، اس کو پڑھ لیں آپ. In the light of the Quranic text, the proper name of the present prophet of the Quran was not Muhammad. جی اچھا، یہ بات بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ساحل کہ جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، ظاہر بات ہے ہر وہ شخص جو قرآن کا تنقیدی انداز میں، یعنی مطلب جو لگے بند ہیں ترجمے ہیں ان کو چھوڑ کر، ان سے ہٹ کر اب آپ تنقیدی طور پر جو ہے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ
कुरान का जो लफ्ज मोहम्मद है वो गायब की शक्ल में है, पास्ट टेंस, और जो है उसकी जो 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 प्रीपोजिशंस हैं वो गायब के हैं, गायब की ज़मीरें और गायब के सेगों के साथ पाया गया है लफ्ज मोहम्मद। लफ्ज मोहम्मद कुरान की जिस जिस आयत में आया है उस आयत में मोहम्मद के साथ जितने सेगे हैं वो सारे माजी के हैं, पास्ट टेंस, और जितनी ज़मीरें हैं वो गायब की हैं। यानी अगर कोई स्कॉलर पर्टिकुलरली इस मोहम्मद के जो है टॉपिक पर मुझसे बात करना चाहे तो मैं आपके चैनल पर अपनी बात पेश कर कर उसके साथ जो है, मैं डिबेट तो नहीं कहता, मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूं। मैं ये साबित करूंगा कि लफ्ज मोहम्मद के साथ, जी, यानी सिंपल लैंग्वेज में जो हमारे सारे व्यूअर्स को समझ में आए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये कुरान लिखा गया तब मोहम्मद नाम का कोई प्रॉफिट जो है वो मौजूद नहीं था। इस वजह से जो बातें लिखी जा रही है वो पास्ट के हवाले से लिखी जा रही है कि पहले कोई मोहम्मद था। देखें, मैं दरअसल यहाँ अपनी इस बात को और भी फर्दर जो है क्लैरिफिकेशन के साथ में ये पेश करूंगा। मैं हर बार कहता हूं कि कुरान का एक प्रेजेंट प्रॉफिट जरूर है, प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट के सेगों में, प्रेजेंट की जमीरों के साथ, हाजिर के जो है सेगे हाजिर के जमीरों के साथ मौजूद है। अच्छा, हाजिर की जमीरें, हाजिर के सेगे कोई एक दो नहीं, सैकड़ों जगह पर आए हैं प्रेजेंट प्रॉफिट के साथ, मगर मोहम्मद के साथ नहीं है। मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि तो जो कुरान का, तो असल में कुरान का जो जिस किसी ने कुरान को लिखा है या उसको लिखत दी है उसने कुरान के प्रेजेंट नबी का नाम हमें नहीं बताया। अब ये और बात है कि तारीख के जो है अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको, यानी एक किसी ऐसी शख्सियत जो कि अपने आप को जो है नबी कहती थी उसके बारे में आपको कोई कुसम कहता है, कोई इब्ने अबी कब्शा कहता, कोई इस तरह के बहुत सारे नाम मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी उस जमाने में मोहम्मद उसको कोई नहीं कहता। अच्छा, कुरान के अंदर भी जिस अंदाज में मोहम्मद के साथ, जिस तरह से मैंने अभी शुरुआत में जो कहा कि इस्लाम से जुड़ी किताबों में मुझे जितनी मैंने तहकीक की है, मुझे दो आदद मोहम्मद मिले, एक वो जो कुरान में था और दूसरा वो जो हदीस या तारीख में है। हदीस या तारीख में मोहम्मद है की शक्ल में है, जबकि कुरान में था की शक्ल में है। मैं दरअसल ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बात है और बहुत गहरी बात है, और ये इल्मी तौर पर, स्कॉलरली एकेडमिक लेवल पर, मैं किसी भी स्कॉलर से, कोई भी स्कॉलर पे, यानी दुनिया के जिस कोने में है, मैं अपनी बात पेश करके उससे मेरे सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। कोई भी शख्स मेरी बात का रद्द करने के लिए अगर कोई तैयार है तो मैं उसके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब ये आज के जो है टॉपिक का आखिरी हिस्सा, वो स्लाइड नंबर जो है, अच्छा ये जो है इस पर आ जाएं आप, इस्लाम के बारे में ये पेश कर लें। The complete package is today called the religion of Islam did not exist anywhere in Arabia in the 7th century AD. Exactly. अब आप देखिए, यहां मैं दरअसल यही कहना चाह रहा हूं कि 7th सेंचुरी एडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि 7th सेंचुरी का जो जमाना है, जो दौर है, वो आज भी दबीस पर्दों के नीचे छुपा है, मुकम्मल अंधेरे में है। हमें पता ही नहीं चलता कि 7वीं सदी ईस्वी में एग्जैक्टली क्या हुआ था, नहीं पता चलता, क्योंकि अब्बासियों ने 7वीं सदी ईस्वी को पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया। ये सारी कारस्तानी अब्बासियों की है, क्योंकि उन्होंने जो तारीख लिखी वो पहले वाली जो बातें हैं उससे टकराती थी, तो इसलिए उन्होंने पहले की सारी बातों को चुन चुन कर मिटा डाला। उन सारी बातों का ताल्लुक उमैयों से था, उमैयद से। तो अब ये अब्बासी अपने आप को उमवियों का हरीफ समझते थे, इसलिए जो है वो, या फिर अब्बासी उमवियों का अपना हरीफ समझते थे, तो इस तरह से उन्होंने उमवियों को भी जो है पूरी तरह से ताराश कर दिया, और फिर उनसे जुड़ी जितनी तारीखें, जितनी बातें, उन सबको भी चुन चुन कर मिटा डाला, और एक नए सिरे से जो चीजें लिखी उसको आज दुनिया इस्लाम के नाम से जानती है। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूं जी। अच्छा, उसके बाद आखिरी स्लाइड ले लें आप, आखिरी, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। इसको भी पढ़ लें आप।
the book that the world knows now as the Quran, no such book existed in the Arabs of the 7th century AD. Exactly. اس طرح سے میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نام کی کتاب اور جس شکل میں آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس شکل میں نام بھی اور شکل بھی دونوں لحاظ سے 7ویں صدی عیسوی میں ایسی کوئی کتاب وجود نہیں رکھتی تھی. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ ساری باتیں اوپن ہیں، یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے ہیں. میں کوئی چھپ کے کمرے والوں کو نہیں بتا رہا ہوں، میں پوری دنیا میں لائیو بتا رہا ہوں. میری باتوں کا رد دنیا کا کوئی بھی اسکالر کہیں سے بھی کر سکتا ہے. میں اس کو خوشامدید کہنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو ہے اپنی بات وہاں جا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی کسی بھی جگہ کسی بھی پلیٹ فارم پر. جی اچھا، کیا یہی وجہ ہے قرآن والا جی کہ جو سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ کسی پرانی کتاب کی بات کر رہا ہے یا دوسری کتاب کی بات کر رہا ہے؟ اصل میں قرآن کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا بولنے والا، کیونکہ قرآن کا لکھنے والا نہیں کہوں گا کہ لکھنے والے تو بہت بعد میں ہیں، قرآن کا بولنے والا اپنی بات کو کلیئر نہیں کر پاتا. یہ آیتیں بھی یہ آیت بھی انہی میں سے ہے. بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کا بولنے والا بولنا کیا چاہتا ہے وہ اپنی بات ٹھیک سے سمجھا نہیں پاتا. اور اس طرح سے میں اس سچویشن کو اپنے طور پر میں ایسے کہتا ہوں کہ قرآن کا بولنے والا ایک ایسا بچہ ہے جس کو بات کرنے کا ابھی سلیقہ نہیں آیا. تو ایسی سچویشن میں کہ وہ بچہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتا، سامنے والے کو سمجھا نہیں پاتا، تو ایسی سچویشن میں پیچھے سے اس کی ماں مفسر کی جو ہے شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھو میرا لال، یہ جو پیارا بچہ ہے وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں مفسر. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ جی سمجھ آئی. مفسر اصل میں یہ ہوتا ہے، مفسر اصل میں یہ قرآن کے بولنے والے کی ماں ہے. کیونکہ ماں ظاہر بات ہے، یعنی مفسر آپ نے دیکھا ہو کہ مفسر کیوں ہوتا ہے بھائی. دیکھیں قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک ڈیٹیل کتاب ہوں، مبین کتاب ہوں، کلیئر کٹ کتاب ہوں، کرسٹل کلیئر کتاب ہوں قرآن کی. یہ بار بار 50 جگہ پر دعوے ہیں. تو اس کے باوجود مفسر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے قرآن کو؟ کیوں پڑتی ہے؟ صحیح بات ہے نا. ہاں یہ میرا بیسک کوشچن ہے کہ مفسر کی ضرورت قرآن کو کیوں پڑتی ہے بھائی؟ کیوں؟ قرآن اپنی بات سمجھا نہیں پاتا. یقیناً ایسے ہی ہے. قرآن کا بولنے والا اپنی بات سمجھا نہیں پاتا. اس طرح سے مفسر جو ہے ایک ماں کی شکل میں اس بچے کی بات سمجھاتا ہے. یہ ہے اصل بات. ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں بھی دیکھو نا، جو کرنٹ جو باتیں ہمارے مومن حضرات کرتے ہیں اور ملا مولوی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ حدیثوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، محمد صاحب جو ہے، صحابہ جو ہے، وہ قرآن کو بہتر سمجھتے تھے، وہ سمجھائیں گے. اچھا، جب حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے پھر اور تیسرا بندہ چاہیے جنہوں نے اس کی شرح کی ہے. اچھا، پھر جس نے شرح کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر اور دوسرا ایک بندہ چاہیے جو اس پہ بھی شرح لکھے. جی، تو یہ کہاں اس کے باوجود سمجھنے نہیں آتی، اس کے باوجود بھی پلے نہیں پڑتی، نہ حدیث پلے پڑتی ہے نہ قرآن پلے پڑتا ہے. دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے، مطلب کتنا بڑا یہ گھن چکر، اس کو کہتے ہیں گھن چکر. گھن چکر اسی کو کہتے ہیں. صحیح، بہت زبردست. تو چلیں جناب، یہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی. میں چاہتا تھا کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری یہ باتیں پہنچیں. اور پھر ظاہر بات ہے، دیکھیں میں کوئی کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف جو ہے سچائی کے ساتھ ہوں اور جھوٹ کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سچائی جیسی بھی ہے، جتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے سامنے آئے، دنیا کے سامنے آنی چاہیے. ہاں اچھا، ادھر تو کھول کھول کے باتیں بتائی گئی ہے. تو ابھی تو ہمارے جو ملا مولوی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو سوال کیے جا رہے ہیں ان کے جواب تو دو یار. کبھی دو گے تم لوگ کہ خالی کھا کھا کے تمہارے گال باہر آ جائیں گے؟ پاگل بنا. ہاں اصل میں دیکھیں وہ جو ہے صرف وہی چورن بیچتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ میں اپنی ہر کمیونٹی پوسٹ میں اس طرح کے
सैकड़ों की तादाद में मैंने सवालात उठाए और नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूं कि भाई किसी को भी मेरी इस बात का पर अगर एतराज है या मेरे इस सवाल का उनके पास जवाब है तो ये लो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर मुझे कॉल करके बोलो कि हाँ भाई मेरे पास आपके सवाल का जवाब है, मैं फलां हूं, तुर्रुम खां हूं, जो भी हूं, ठीक है, फलां प्लेटफॉर्म पर जो है हम बैठेंगे, आप अपना सवाल पेश करें, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। बोलो बोलो ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी व्यूअर्स है, आई होप आप लोगों को आज की जो ये एजुकेशनल सेशन था वो पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, क्योंकि बड़े ही आसान अंदाज में कुरान वाला जी ने हमें ये सारी चीजें बताई है। और वो अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं। बीच में कुछ वजूहात की वजह से वो थोड़ा सा रुक गया था मामला, लेकिन अब वो फिर से लाइव स्ट्रीम का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुरान वाला जी का जो दोनों चैनल है, एक मेन चैनल जो कि अभी डीमोनेटाइज हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं उसको फिर से मोनेटाइज जो करने कुरान की। वाला बैकअप के नाम से है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और फिर जो है मैं कोशिश करूंगा उस पर जो है लाइव हो। असल में लाइव करने का इसलिए भी मेरा मूड नहीं बनता साहिल, क्योंकि मैंने कितने बार लाइव करके कितने बार ललकारा है, चैलेंज किया है, ओपन चैलेंज, लेकिन कोई जो है किसी के कान पर जूं तक नहीं दौड़ती। तो अगर कोई है किसी में दमखम है, इल्मी दमखम, मेरी बातों का जो है रद्द करने के लिए किसी के अंदर इतनी जो है इतनी सकत है, इतना जिगरा है, इतनी हिम्मत है, तो ठीक है भाई, आओ बैठेंगे, बात करेंगे। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं भाई, इल्मी जो है मुकालमा होगा पूरी शाइस्तगी के साथ, पूरे उनके जो है उनके प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। अब आप देखें कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता हूं, कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता हूं, और जब कभी भी जो है हमारे प्यारे नबी का नाम आता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूं। और क्या चाहिए भी आप लोगों को? मैं कोई तौहीन नहीं करता, मैं किसी की तजरील नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ हूं। जो कुछ मैंने पाया है, जो कुछ मुझे लगा कि सच है, मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। अमित साहब लिंक शेयर कर दे हमारे मोमिन हजरात, अगर सचवाला जी से इस मामले में सवाल करना चाहते हैं। डिस्कनेक्ट हो गए क्या? कुरान वाले जी डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, फिर से रिजॉइन कर लेंगे। तो हम लिंक शेयर कर देते हैं और हमारे जो मोमिन हजरात है आप जुड़ सकते हैं। जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, कुरान वाला जी रिटर्न आएंगे। हरदयाल गिल साहब कह रहे हैं आई लव यू सचवाला जी। थैंक यू सो मच हरदयाल गिल साहब। और स्मृति जी 6 महीने से मेंबर है, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्च इनकमिंग भाई की भी एंट्री हो चुकी है 50 मेंबरशिप के साथ। सारे लोग मेंबरशिप का ऑप्शन जो है वो ऑन करके रखें ताकि आपको फ्री मेंबरशिप मिल जाए। और इंडियन इनसाइड कह रहे हैं इस्लाम की किताबों पे पहले किसी ने सवाल नहीं किया और अब ये काम सोशल मीडिया पे होने लगा तो मोमिन हदीसों से भाग रहे हैं। देखते हैं कुरान कब तक टिकता है। अभी कुरान से भी भागेंगे, टेंशन ना ले आप। मार्च इनकमिंग भाई ने और 50 मेंबरशिप गिफ्ट कर दिए, थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। रवू साहब कह रहे हैं उसकी वजह यह है ना साहिल कि देखें कुरान के नाम पर कुरान वाला अब मार्केट में आ गया है। अब देखें अब कितनी देर कौन टिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो भागते फिर रहे हैं, लेकिन हम इनको चुन चुन के जो है ना लेके आएंगे। क्योंकि देखिए असल में मामला ये है कि जितने भी मुफ्ती है, मौलाना है, अवाम इनको क्यों वो दर्जा दिए? इस्लाम का दिफा करने के लिए ना। तो अगर इस्लाम का दिफा ही नहीं करेंगे तो वो किस बात की उनसे सैलरी ले रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं? हक ही नहीं बनता। तो मैं तो अपने मोमिन हजरात से कहता हूं कि आप लोग जो है वो पीछे क्यों नहीं पड़ते अपने मौलानाओं के, मुफ्तियों के? क्या ऐसा डर है आपको? हाँ, उनका दामन पकड़कर उनको झंझोड़ना उनको चाहिए भाई कि हम जैसे लोगों का मुंह बोलती बंद करो। करना चाहिए, क्यों नहीं करते? हाँ सही ले बात। क्या उठा के उनको, वरना उनका चंदा बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। उनको तुम जो है वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमा रहे हो, पैसे लुटा रहे हो उनके ऊपर, घर दे रहे हो, बंगला दे रहे हो, तो उठा के लेके आओ ना, पीछे पड़ो उनके। ये तारिक मसूद जैसे लोग जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, स्पोर्ट्स कार में। और जी तो उठा के लाओ उनको, पीछे पड़ो, वरना उनका चंदा बंद करो। वो अपना काम नहीं निभा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं।
एग्जैक्टली। तो कोई मोमिन हजरात अगर जुड़ना चाहता है, लिंक हमने शेयर किया है, आके आप बात कर सकते हैं कुरान वाला जी से। रबू साहब कह रहे कुरान वाला जी आप मदरसे में पढ़े हैं, फिर भी आपका इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे? आपने इंग्लिश कैसे पढ़ाई? नहीं भाई, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बस मैं भी ऐसे ही टूटी फूटी बोलता हूँ यार। मैं कोई, ना मैं स्कॉलर हूँ ना मैं कुछ, नहीं, बस एक स्टूडेंट हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ बस। साहिल भाई, सम से अबाउट पेट्रान या पेट्रा होगा, हाइपोथेसिस अबाउट इस्लाम ओरिजिन, व्हाट डू यू से? जी कुरान वाले जी। हाँ, बात सही है कि पेट्रा के बारे में हमको बहुत से शवाहिद मिलते हैं, दलीलें मिलती हैं, मगर अब बहरहाल अब जो है मैं अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। लेकिन डैन जिप्सन की जो थ्योरीज हैं, जो बातें हैं, वो भी मुझे बहुत अपील करती हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, ये बात तो है जी। हरदयाल गिल साहब कह रहे लव यू साहिल, सचवाला एडम, लव फ्रॉम लंदन। थैंक यू सो मच यार हरदयाल जी, आपके प्यार का, मोहब्बत का, सपोर्ट का। सुब्रमण्य आचार्य भाई न्यू मेंबर बने हैं, और देश हित सर्वोपरि भाई 7 महीने से मेंबर है, थैंक यू। मिनिमलिज्म कह रहे हैं इफ यू सी कॉइन ही इज होल्डिंग सेफ्टी पिन नॉट स्वॉर्ड। उस पे तो हमने बाकायदा रोस्टिंग कर दी है। करना टॉक्स भाई हमारे 12 महीने से मेंबर है, कह रहे करना कुरान वाला जी के चरणों में सादर प्रणाम, कीप रॉकिंग। जीते रहिए, जीते रहिए। और मार्स इनकमिंग कह रहे हैं इस्लाम इमर्ज फ्रॉम खुरासान नॉट मक्का। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है मार्स इनकमिंग भाई, थोड़ा स्टार्टिंग का पॉइंट आप देखेंगे शुरू से स्ट्रीम को, तो ये चीज कुरान वाला जी ने बताई है। सुमित सैनी साहब कह रहे हैं कुरान वाला जी वेरी गुड इंफॉर्मेशन यू हैव डिलीवर्ड, थैंक यू यार, ये बहुत शुक्रिया। प्रिंस क्रिश्चियन भाई कह रहे हैं व्हाट डज तकबीर मीन, इज तकबीर अ वॉर क्राई? बिकॉज आई नोटिस आफ्टर सेइंग तकबीर दे शाउट अल्लाहू अकबर एंड रन आफ्टर किलिंग एंड मॉब लिंचिंग। यार वो जो अल्लाहू अकबर है वही तकबीर है। तकबीर का मतलब होता है किसी को बड़ा करना। यानी तकबीर का मतलब ये हुआ दूसरे लफ्जों में कि गोया कि अल्लाह छोटा है तो उसको बड़ा कर रहे हैं हम सब। ये बात तो ये हो रही है, समझो। तकबीर का मतलब बड़ा करना, बड़ा होना नहीं है, बड़ा करना। तकब्बुर का मतलब बड़ा होना है, तकबीर का मतलब बड़ा करना, ठीक है। उसी तरह से तौहीद, हाँ, अल्लाह को बड़ा किया जा रहा है जी। अच्छा, ये जो है, ये जो कलमा है तकबीर का, नारा है, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, तो ये सब जगह पे ये इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फटने के टाइम पे ही नहीं, बाकी चीजों में भी ये इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ काटना है, गले काटना है, तो वहां पर भी तकबीर ही तो इस्तेमाल होती है ना भैया, सब जगह इस्तेमाल। हाँ, गला काटने की भी जो है उस वक्त भी होती है तकबीर। और सोचिए कि वो जब जानवर को जब ज़िबा करते हैं उसमें भी अल्लाह अकबर कह के करते हैं। वही जो है, वो भी गला है, खून बहाना है, तो तकबीर ही होता है, और क्या। पल्लवी जी मेंबर बनी है, थैंक यू। चंद्रा भाई कह रहे हैं बीसीएमसी यूट्यूब इज नॉट लेटिंग मी टू पोस्ट सुपर चैट। ये आपके साथ मामला नहीं है, जेआर भाई के साथ भी यही मामला हुआ है चंद्रा भाई, कि ये यूट्यूब जो है ना बहुत सेंसर कर रहा है वर्ड्स को। डीकेटी भाई 6 महीने से मेंबर है, कह रहे द राइज ऑफ न्यू इस्लाम बाय एक्स मुस्लिम टीम साहिल, एडम एंड कुरान वाला जी भी आपको लिखना चाहिए। वेकअप सनातनी भाई कह रहे हैं इंग्लिश वर्जन प्लीज वॉच जे स्मिथ इन्वेस्टिगेटिंग इस्लाम। बिल्कुल, जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो जे स्मिथ साहब की भी अच्छी इस पे तहकीक है। रबू जी कह रहे हैं कुरान वाला अगर ये कॉइन 7th एडी का है, 7th सेंचुरी एडी का है, तो अब्बासियों से पहले मोहम्मद नाम कैसे था? प्लीज क्लेरिफाई। नहीं, वो मोहम्मद तो पहले से था ना भाई, जबकि मेरे नजदीक तो कुरान का जो मोहम्मद है वो तो ईसा है। ये बात मैं बाकायदा साबित कर चुका हूँ। ईसा इब्न मरियम का जो है लक़ब मोहम्मद है। मोहम्मद असल में किसी शख्स का नाम नहीं है, बल्कि एक टाइटल है। तो इस लिहाज से मैं जितना कुछ तहकीक किया हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कुरान का जो मोहम्मद कोई और नहीं है, बल्कि एक टाइटल है। वो ये टाइटल फिट होता है ईसा इब्न मरियम पर। मैंने इसको खुलकर कहा है जी। ह्यूमैनिटी अबव ऑल कह रहे ग्रेट जॉब एजुकेटिंग अस कुरान वाला सर, थैंक यू। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं नो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स एज कुरान वाला सेड एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया's leaders have stopped western archaeologists from conducting research.
Lots of early Islamic coinage with Islamic slogans known as Sasanian coinage, with third takshil of Quran, phonology, morphology and syntax of Arabic from Khorasan. चलिए ये जी हाँ, नॉलेज जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल शेयर सही किया बात। है। मक्का से कुछ प्यारे भी नहीं भाई मिलता, ये बात याद रखो, मक्का से कुछ भी नहीं मिलता, जीरो है, जीरो। जी प्यारे भाई कह रहे अबू ताहिर के मुक्के की सूजन है नाक पे। सत्यव्रता रामदास साहब भाई कह रहे हैं कुरान वाला जी प्लीज रेज्यूम रीस्टार्ट दरसे कुरान विद साहिल एडम, इट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। जी जी जी, हाँ देखते हैं भाई, कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता हाँ निकालेंगे। ये वो वाला आपका जो सीरीज थी बड़ी जबरदस्त थी कुरान वाला जी, हाँ, उसको वो भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत हेल्पफुल थी, बहुत से लोग कहते भी थे। अब देखें बहरहाल कोई रास्ता निकले तो करेंगे। जी आफरीन जी कह रही हैं मोमो अपने सामान मुबारक को तकबीर नहीं कर पाया, यानी बड़ा नहीं कर पाया, ये कह रही हैं। अभय सिंह चौहान कह रहे हैं एडम हिस्टोरियन को बुलाओ, एडम साहब को जैसे ही मौका मिलेगा आ जाएंगे। मार्च इनकमिंग कह रहे हैं इफ द कुरान एंड इस्लाम ट्रूली इमर्ज फ्रॉम मक्का इन सऊदी अरेबिया एंड कुरान इज इन फोशा, हाउ कम इट वाज एक्चुअली पीपल फ्रॉम द ईरानियन प्लेट्यू हु फर्स्ट क्रिएटेड द कोर ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। यानी ये सवाल यहाँ पर असल में कुरान इज इन फुसहा है, असल में वो फुसहा, फुसहा असल में ये अरबी का एक टर्म है, तो क्या वाकई वो फुसहा में था तो नहीं था, समझो यही बात है जी। और ये सवाल तो मोमिनों से तो